Very good morning to all of you. Welcome to my YouTube channel. So today we will study the last unit, that is the ordinary differential equation. So in this chapter or we can say in this unit we will first study the first topic of this unit is the differential equation of first order and first degree. So we will first study some definitions, that is the definition of differential equation, what is an ordinary differential equation, what is the order of a differential equation, what is the degree of a differential equation, and after all this we will study the methods of solving first order and first degree differential equations, and we will also solve some examples on these topics. So what is a differential equation? So simply we can say an equation which involves the differential coefficients or differentials is known as differential equation. For example, dy by dx, this is equal to 2x plus 2, so this is a differential equation because it involves differential coefficients. Similarly, a second order derivative, that is d2y by dx square plus 3 times dy by dx plus 2, this is also a differential equation because it involves differentials. So in other words, we can say an equation involving derivative or derivatives of a dependent variable with respect to the independent variable or variables is called a differential equation. So next is the ordinary differential equation. So this is an equation, that equation in which all the differential coefficients are with respect to a single independent variable. So what is the main important thing in this ordinary differential equation? That it involves the differential coefficient with respect to a single independent variable. So this is for example, जैसे हमारे पास dy by dx है, so जो y होता है, y हमारे पास डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो x है यहाँ पर, ये हमारा क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है. सो हम कहेंगे कि ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होती है? वो इक्वेशन जो क्या इन्वॉल्व करे, इन विच ऑल द डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स आर विथ रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे डी वाई बाई डी एक्स है, ये हमारे पास है डिपेंडेंट वेरिएबल और x हमारे पास है इंडिपेंडेंट वेरिएबल. और ये क्या कर रहा है, ये इनमें इसमें क्या हो रहा है कि जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट्स है वो क्या है, आर विथ रिस्पेक्ट टू ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो ए सिंगल इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है यहाँ पे x. सो ये हमारे पास क्या बन गई, एग्जाम्पल ऑफ ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन. सो dy by dx plus x plus 1 equal to 0 is an example of ordinary differential equation. Similarly, dy by dx is equal to 2x plus 1, या हम डिफरेंशियल जो डेरिवेटिव होता है इसको हम इस तरीके से भी लिखते हैं y डैश से. So that is the derivative of y with respect to x written as y dash. So this is equal to x square minus 1. So ये भी हमारे पास क्या है, ordinary differential equation, and so on. Next is the order of a differential equation. So order of a differential equation is the order of highest differential coefficient present in the equation. So means जो order होता है वो जो किसी differential equation का क्या होता है कि जो उसमें highest differential coefficient होगा, उसका जो highest differential coefficient उस equation में जो present होगा उसी को हम कहते हैं order of the differential equation. For example देखो कि जैसे यहाँ पे जो differential coefficient है, that is dy by dx whole square plus 7x plus 5 is equal to 0. So इसका जो highest differential coefficient है, जो that is dy by dx का highest differential coefficient 1 है. So ये first order derivative. So इसलिए इसका order कितना आएगा, 1. आपने ये square नहीं देखना, ये basically ये अलग चीज होती है. सो इसी तरीके से हमारे पास ये टर्म देखिए, यहाँ पर हमारे पास जैसे ये है 1 प्लस डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर देन होल क्यूब, दिस इज इक्वल टू डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर. सो यहाँ पे जो डिफरेंशियल कोफिशिएंट है दैट इज डी वाई बाई डी एक्स, उसका यहाँ पे जो ये ऑर्डर है दिस इज 1 और इस जगह पे ऑर्डर कितना है 2. सो इस पूरी इक्वेशन का जो ऑर्डर होगा दैट विल बी 2. सो ये आपने देखना है. So next is the degree of a differential equation. So degree of a differential equation is the degree of highest derivative after removing the radical, sign and fraction. So हम कहेंगे कि जो डिग्री होती है किसी डिफरेंशियल इक्वेशन की वो क्या होता है, दैट इज द हाईएस्ट डेरिवेटिव आफ्टर रिमूविंग द रेडिकल, साइन एंड फ्रैक्शन. मीन्स हम अगर उसमें कोई साइंस है, रेडिकल साइंस है या अगर उसमें फ्रैक्शंस है, अगर हम उनको पूरा प्रॉपरली सॉल्व करने के बाद जो उसका हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा उसी को हम क्या कहेंगे, डिग्री कहेंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे है डी टू
y by dx square whole raising power 3 minus 7 times dy by dx plus phi is equal to 0. So इसका जो डिग्री है that is 3. So this is the degree. Now this term is the degree and this is the order. So order इसका 2 है और डिग्री इसकी क्या है 3 है. Similarly जैसे हमारे पास ये एक और एग्जाम्पल है 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर and whole raising power 5 by 2. So this is equal to 2 whole divided by d2y by dx square. So अब हम पहले इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे. ये वाली क्वांटिटी को हम क्रॉस मल्टीपल करेंगे 2 के साथ, तो हमने यहाँ पे लिख दिया. So यहाँ से हमारे पास क्या बन जाएगा, हम इस इक्वेशन को स्क्वायर कर सकते हैं. जब स्क्वायरिंग करेंगे तो ये बाहर का जो 5/2 के 5/2 है दैट इज ये 2 कैंसिल हो जाएगा और इसका स्क्वायर हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास मीन्स हमने इसको यहाँ से जो स्क्वायरिंग इसके जो फ्रैक्शन था यहाँ से इसको फ्री कर दिया. सो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाएगा, नाउ इट विल बिकम 1 plus dy by dx का होल स्क्वायर रेजिंग पावर 5 एंड दिस इज इक्वल टू 4 times d2y by dx स्क्वायर रेजिंग होल स्क्वायर. सो अब यहाँ पे इस जो ये जो इक्वेशन है इसका जो डिग्री है दैट विल बी, जो डिग्री होगी यहाँ पे देखिए जो हाईएस्ट डेरिवेटिव होगा. सो हाईएस्ट डेरिवेटिव का यहाँ पे डिग्री इट विल बी 2 और जो हमारे पास यहाँ पे ऑर्डर होगा वो भी हमारा क्या हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा. ये बड़ा ध्यान से समझना आपने कि डिग्री और ऑर्डर बोथ आर डिफरेंट थिंग्स. सो यहाँ पे जो इसका हाईएस्ट डेरिवेटिव था दैट वाज दिस सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसकी जो डिग्री है दैट इज 2. सो इसलिए यहाँ पे इसकी डिग्री 2 आई. आप ये मत सोचिएगा कि इसका पूरा होल रेज पावर 5 है तो मीन्स 5 बड़ी होगी डिग्री, नहीं ऐसा नहीं होगा. जो उसके हाईएस्ट डेरिवेटिव की जो होगा जो उसकी डिग्री वही इसमें आएगा. सो नेक्स्ट इज द फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन. अब हम कहते हैं कि किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें फॉर्म कैसे करना है. सो डिफरेंशियल इक्वेशंस कैन बी फॉर्म्ड बाय डिफरेंशिएटिंग द ऑर्डिनरी इक्वेशन एंड एलिमिनेटिंग द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स. सो मींस हम कैसे डिफरेंशियल इक्वेशन को फॉर्म कर सकते हैं कि मींस हमने क्या करना है, उस इक्वेशन को तब तक हमने डिफरेंशिएट करना है जब तक क्या हो कि उसके जितने भी मतलब हमने जो उसके कांस्टेंट्स होंगे उनको क्या करेंगे हम उनको रिमूव कर देंगे. सो जैसे एक एग्जाम्पल है कि अगर हमारे पास y है a cos x प्लस b sin x. अब यहाँ पे a है और b है, ये हमारे पास कांस्टेंट है. तो हमें अगर डिफरेंशियल इक्वेशन बनानी है उसके लिए ये जो कांस्टेंट्स है इनको क्या करना है, हमने रिमूव करना. अब ये कैसे रिमूव होंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे. जब हम इसको फर्स्ट टाइम डिफरेंशिएट करेंगे इट विल बिकम dy by dx दिस इज इक्वल टू माइनस a sin x प्लस b cos x. सिमिलरली जब सेकंड डेरिवेटिव करेंगे तो वो आ जाएगा माइनस a cos x माइनस b sin x. यहाँ से मैं माइनस साइन को बाहर ले लूंगी तो ये a cos x प्लस b sin x. मगर जो ये वाली क्वांटिटी है तो ये बेसिकली क्वांटिटी किसकी इक्वल है, दिस इज बेसिकली द y. सो यहाँ से मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ कि दैट d2y by dx स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस y. सो ये आ गया हमारे पास d2y by dx स्क्वायर दिस इज इक्वल टू माइनस y. और वी कैन से ये y मैंने इस जीरो के इस साइड ले लिया है अदर साइड. सो ये मेरे पास क्या बन गई, डिफरेंशियल इक्वेशन. सो दिस इज द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ ऑर्डर 2. सो ऑब्टेन्ड बाय एलिमिनेटिंग 2 कांस्टेंट्स. कौन कौन से कांस्टेंट यहाँ से हमने एलिमिनेट किए, दैट इज a एंड b. नेक्स्ट इज द सोल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन. तो अब जैसे इसी एग्जांपल में अगर हम देखेंगे जो y इज इक्वल टू a इंटू कॉस एक्स प्लस बी साइन एक्स था, वही क्या होगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होगा, सोल्यूशन होगा. उसी को हम कहेंगे ये इसका सोल्यूशन है, बिकॉज उसी को जब हमने डिफरेंशिएट किया 2 टाइम्स तो जाके हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन ये बनी थी. सो एन इक्वेशन कंटेनिंग इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड एन इक्वेशन कंटेनिंग डिपेंडेंट वेरिएबल y and independent variable x and free from derivatives which satisfies the differential equation is called the solution of the differential equation. सो इसको ये तो एग्जाम्पल से हमें यहाँ पे क्लियरली पता चल गया कि ये जो y है यही हमारे पास क्या होगा, इसका सोल्यूशन होगा. सो नेक्स्ट इज द जनरल सोल्यूशन और जिसको हम प्रिमिटिव सोल्यूशन भी कहते हैं. सो द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन विच इन्वॉल्व्स एज मेनी आर्बिट्ररी कांस्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन इज कॉल्ड द जनरल सोल्यूशन एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंप्लीट सोल्यूशन.
सो हम कहेंगे कि जो जनरल सॉल्यूशन है वो किसी डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या होता है, अगर वो क्या इन्वॉल्व करे कि एज मेनी आर्बिट्री कांस्टेंट्स एज द ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, जितनी उसकी डिग्री होगी, जितना उसका ऑर्डर होगा डिफरेंशियल इक्वेशन का, उतने क्या करेगा वो आर्बिट्री कांस्टेंट्स को भी इन्वॉल्व करेगा। सिमिलरली नेक्स्ट है हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन इज दैट which contains no arbitrary constants and is obtained from the general solution by giving particular values to the arbitrary constants. सो मीन्स एक पर्टिकुलर सोल्यूशन अगर हमें डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर निकालना है, उसमें हमें करना क्या है। एक तो वो जो है वो कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट को कंटेन नहीं करेगा, और वो ऑब्टेन कैसे होगा, हम उसको इसी जनरल सोल्यूशन से निकालेंगे जब हम जो पर्टिकुलर वैल्यूज, जब हम उसमें क्या करेंगे, जो उनके बाय गिविंग द पर्टिकुलर वैल्यूज टू द आर्बिट्री कांस्टेंट्स। सो ये आपको जब मैं अभी एग्जाम्पल से शो करूंगी आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। So next is the method of solving first order first degree differential equation. So इसके हमारे पास फोर मेथड्स है, फोर टाइप्स है, किस तरीके से हम इनको किस तरीके से हम इनको सॉल्व कर सकते हैं ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस को। फर्स्ट इज द डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल सेपरेबल मेथड, दैट इज एक तो हो गया वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दूसरा अगर हमारे पास कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन है जिनको हमें सॉल्व करना हो, दैट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अदर होती है हमारे पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन एंड देन इट इज एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। अब जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से कैसे हमने फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशंस को सॉल्व करना है वो मैं आपको बताती हूँ। सो इफ ए डिफरेंशियल इक्वेशन कैन बी रिटन इन द फॉर्म y is the function of y only, so y dy this is equal to x dx, where x is the function of x only. So we say that the variables are separable, y on LHS and x on RHS. means अगर हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, अगर हमें उसको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व करना है, तो उस केस में हमें क्या करना है, हमें y वाली टर्म्स y की साइड लेनी है और x वाली टर्म जो है x की साइड लेनी है। तो ऐसे केस में हम ऐसे मेथड को हम बेसिकली वेरिएबल सेपरेबल मेथड कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल dy बाई dx है, सो दिस इज इक्वल टू xy, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है। हमने क्या करना है, x वाली टर्म्स को एक साइड करना है, y वाली टर्म्स को एक साइड। सो यहां से हम इस इक्वेशन को फिर से कैसे लिख सकते हैं, dy बाई कैपिटल Y दिस इज इक्वल टू x इंटू dx। सो रूल टू फाइंड द पर्टिकुलर सोल्यूशन। सो अगर ऐसे केस जो इस टाइप के क्वेश्चन होंगे, इनमें अगर हमें कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको इन्हीं क्वेश्चन का पर्टिकुलर सोल्यूशन भी निकालना है, सो उस केस में हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके थ्री टाइप्स है, थ्री मेथड है कैसे करना है। सो फर्स्ट क्या करना है आपको, हमें पहले जनरल सोल्यूशन फाइंड करना है विथ आर्बिट्री कांस्टेंट c। फिर क्या करना है, उसको जो ऑब्टेन द वैल्यू ऑफ c बाय पुटिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y इन द सोल्यूशन। फिर हमने उस जो c की वैल्यू निकालनी है बाय पुटिंग x एंड y इन द सॉल्यूशंस। फिर जो वो वैल्यू हमें c की आई उसको हमने सब्स्टिट्यूट करना है जनरल सॉल्यूशन में टू गेट द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। सो नाउ वी विल सॉल्व सम एग्जांपल्स। Also a first order differential equation together with an initial condition is called the initial value problem. So means कोई भी first order differential equation अगर उसके साथ कोई initial condition हमें given होगी वहाँ पे, तो ऐसी जो problems बनती है उनको हम initial value problems कहते हैं। So अब सबसे पहले हम first एक example solve करते हैं। So first example is solve dy by dx plus 1 plus y square by y is equal to 0. सो इस टाइप की इक्वेशंस को हमने कैसे सॉल्व करना है, जो ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की जो डिफरेंशियल इक्वेशंस है। सो इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास क्या गिवन है, द गिवन, आई विल राइट द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, यही मैंने शॉर्ट में लिख रही हूँ डिफरेंशियल इक्वेशन, आप पेपर में DE मत लिखिएगा, आप पूरी तरीके से लिखिएगा। सो द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज, हमारे पास गिवन है dy by dx, this is plus 1 plus y square divided by y, this is equal to 0। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको हम दूसरी तरीके से भी राइट कर सकते हैं, क्योंकि हमें y वाली टर्म्स वेरिएबल सेपरेबल से करेंगे तो इनको हमने अलग करना है। सो मैं लिख सकती हूँ dy by dx this is equal to माइनस टाइम्स 1 plus y square divided by y। Now I will write separating the variables we get. So I will write separating, अब हम क्या करेंगे, इसके वेरिएबल सेपरेट करेंगे। So separating the variables we get
सो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, y वाली टर्म्स y में ले लेंगे और x के वहाँ पे रख लेंगे. सो ये आ जाएगा y क्रॉस मल्टीपल करें, सो y डिवाइडेड बाई 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटू डी वाई, दिस इज इक्वल टू माइनस डी एक्स. ये टर्म आ गई. अब हमने क्या करना है, इसके बाद इसको इंटीग्रेट करना है. सो आई विल राइट हियर इंटीग्रेटिंग, नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट. सो इंटीग्रेटिंग फर्स्ट we have हमारे पास क्या आ जाएगा इंटीग्रेशन से, we will write it as integration of y divided by 1 plus y square into dy, this is equal to integration minus dx. सो यहाँ से हमारे पास ये बन जाएगा, इसको अगर हम 1/2 से मल्टीपल कर देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/2 से मतलब डिवाइड और मल्टीपल करेंगे 2 से, सो इट विल बिकम 2y, देन इट इज़ 1 प्लस वाई स्क्वेयर, देन इट इज़ dy, दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स dx. सो इंटीग्रेशन माइनस टाइम्स dx. सो यहाँ से हमारे पास ये क्या बन जाएगा, सो नाउ दिस विल बिकम 1/2. सो ये किसकी इंटीग्रेशन बन गई, लॉग ऑफ 1 प्लस वाई स्क्वेयर की इंटीग्रेशन, और यहाँ से हमारे पास क्या आएगा माइनस एक्स प्लस सी. सो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका रिक्वायर्ड सोल्यूशन. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन, ये हमारे पास इसका सोल्यूशन आ गया. सो रिक्वायर्ड सोल्यूशन, सो दिस इज द आंसर. सो यहाँ से हमें सिंपली इसको जो हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको हमें लेके चलना है. उसके बाद क्या करना है, उसको हमने पहले वेरिएबल सेपरेबल मेथड से उसके वेरिएबल सेपरेट करने, उसके बाद हमने उसको इंटीग्रेट करना है, और जो आंसर आएगा दैट विल बी द सोल्यूशन. So next example is find the general solution of the differential equation, and differential equation हमारे पास given है dy by dx plus square root of 1 minus y square divided by 1 minus x square, this is equal to 0. So क्या करना है हमने ऐसे क्वेश्चंस को, सबसे पहले हम given differential equation को रीराइट करेंगे. So मैं डायरेक्टली लिख सकती हूँ dy by dx, this is equal to I will write it as this is equal to minus times 1 minus y square, square root of 1 minus y square and square root of 1 minus x square. ओके, और इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड से. सो यहाँ से जब हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड करेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास dy होल डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई स्क्वेयर, और यहाँ से हो जाएगा माइनस टाइम्स dx डिवाइडेड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वेयर. सो दिस इज बाई वेरिएबल सेपरेबल मेथड. सो बाई सेपरेटिंग वेरिएबल्स. सो हमने इसके वेरिएबल सेपरेट कर दिए. अब क्या करना है, हमने इंटीग्रेशन करना है. सो वी गेट इंटीग्रेटिंग, नेम इट एज इक्वेशन फर्स्ट. इंटीग्रेटिंग फर्स्ट वी गेट, यहाँ से क्या आ जाएगा हमारे पास, इंटीग्रेशन that is square root of 1 minus y square into dy, this is equal to integration minus dx divided by square root of 1 minus x square. सो इंटीग्रेशन ऑफ, ये किसकी इंटीग्रेशन है, दिस इज बेसिकली द साइन इनवर्स ऑफ y. सिमिलरली ये इंटीग्रेशन आ जाएगी साइन इनवर्स ऑफ c. साथ में क्या आ जाएगा, आर्बिट्री कांस्टेंट, वो भी हमें इसी टाइप से लिखना है. सो साइन इनवर्स c. सो वेयर आई विल राइट वेयर साइन इनवर्स c is an arbitrary कांस्टेंट. ओके, ये हमारे पास आ गया आर्बिट्ररी कांस्टेंट. अब हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है. सो यहाँ से मैं इसको लिख सकती हूँ साइन इनवर्स y प्लस साइन इनवर्स x, दिस इज x बेसिकली, साइन इनवर्स x, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स c. सो ये हमारे पास आ गया. सो यहाँ से और फर्दर मैं इसको कैसे लिख सकती हूँ, सो दिस इम्प्लाइज दैट साइन इनवर्स ऑफ, ये हमारे पास आ जाएगा यहाँ से. सो साइन इनवर्स, वी कैन से साइन इनवर्स यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास. सो साइन इनवर्स x, यहाँ से हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y, दिस इज इक्वल टू साइन इनवर्स c. सो जो ये पार्ट होता है इसकी वैल्यू बेसिकली होती है हमारे पास, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स ऑफ x रूट 1 माइनस वाई स्क्वेयर प्लस y रूट
1 माइनस एक्स स्क्वेयर। सो हम इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सो विच इज़ इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ सी। सो यहाँ से साइन और साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। सो वी आर लेफ्ट विथ एक्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू सी। सो वेयर सी इज एन आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो सी क्या है हमारे पास? आर्बिट्ररी कांस्टेंट। सो ये हमारे पास इसका जनरल सॉल्यूशन आ गया। सो इस तरीके से क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। Next example is find the particular solution of differential equation e raised power x tan y dx plus 2 minus e raised power x into secant square y dy equal to 0 given that y is equal to pi by 4 when x is equal to 0. So ऐसे क्वेश्चंस को क्योंकि हमें इसमें पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है तो सबसे पहले हमें इसका जनरल सोल्यूशन निकालना है। सो उसको हम वैसे ही करेंगे वेरिएबल सेपरेबल मेथड से सॉल्व। सो सबसे पहले हम लिखेंगे द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज the given differential equation is so हमारे पास इक्वेशन क्या है? e raised power x then it is tan y into dx then plus 2 minus e raised power x then secant square of y then dy this is equal to 0. so और हम क्या लिख सकते हैं इसको और उसको फर्दर रीराइट करते हैं। so 2 minus e raised power x into secant square y dy this is equal to minus e raised power x tan y into dx. सो यहाँ से वेरिएबल सेपरेबल मेथड से हम y वाली टर्म्स एक साइड ले लेंगे, x वाली टर्म्स अदर साइड। सो आई कैन राइट इट एज secant square y divided by tan y into dy this is equal to minus e raised power x divided by 2 minus e raised power x into dx using variable separable मेथड। सो अब हमने इंटीग्रेट करना है। सो ऑन इंटीग्रेटिंग फर्स्ट नेम इट एज इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी हैव और वी गेट। सो इसको इंटीग्रेट करते हैं, इट बिकम secant स्क्वायर वाई डिवाइडेड बाई tan y dy दिस इज इक्वल टू माइनस टाइम्स e रेज पावर x डिवाइडेड बाई 2 माइनस e रेज पावर x इंटू dx। सो ये किसका इंटीग्रेशन बन जाएगा? दिस बिकम log ऑफ tan y की इंटीग्रेशन है ये, और ये बन जाएगा log ऑफ 2 माइनस e रेज पावर x की इंटीग्रेशन देन प्लस log ऑफ c। सो यहाँ से हम इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा log ऑफ tan ऑफ y और दिस इज इक्वल टू ये हो गया log ऑफ एम एन का फॉर्मूला, बिकॉज log ऑफ एम एन इज इक्वल टू log ऑफ m प्लस log ऑफ n। सो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ ये आ जाएगा आपके पास log ऑफ एम एन दैट इज c इंटू 2 माइनस e रेज पावर x यूजिंग द फॉर्मूला। So using the formula log of mn is equal to log m plus log n। सो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा? log और log कैंसिल आउट हो जाएगा। सो ये हो जाएगा tan ऑफ y दिस इज इक्वल टू c इंटू 2 माइनस e रेज पावर x। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। ये हमारे पास रिक्वायर्ड सोल्यूशन है। अब हमें साथ में क्या निकालना है? हमारे पास है y इज इक्वल टू पाई बाई 4 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो अब हमें ये केस भी फाइंड आउट करना है। सो हम यहाँ पे लिख लेते हैं। सो फ्रॉम हेयर आई विल राइट दैट नाउ y इज इक्वल टू वाई बाई 4। नाउ y हमारे पास दिया है पाई बाई 4 के इक्वल एंड व्हेन x इज इक्वल टू 0, व्हेन x किसके इक्वल है? 0 के। सो हम वो वैल्यू हम किस में लगाएंगे? इसी इक्वेशन में लगाएंगे। सो नेम इट एज इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो फ्रॉम सेकेंड वी हैव tan of y this is equal to c into 2 minus e raised power x। so tan of y की जगह पे आ जाएगा पाई बाई 4 then this is equal to c times then 2 minus e raised power 0। so ये आपके पास आएगा tan पाई बाई 4 और tan of पाई बाई 4 and this is equal to c
2 माइनस 1. सो यहाँ से आ जाएगा हमारे पास दिस इज इक्वल टू सी. सो tan पाई बाई 4 होता है 1 के इक्वल. सो 1 इज इक्वल टू सी. सो देयरफॉर सी की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 1 आई. और इसकी वैल्यू मैं अगेन कहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँगी, यहाँ पे. सो यहाँ से मुझे सी की वैल्यू आ रही है, जस्ट अ सेकेंड, ये हो गया 1 एंड इट बिकम 1. ओके, सो यहाँ से हमने क्या करना है, इसकी वैल्यू किस में सब्स्टिट्यूट करनी है, इस इक्वेशन सेकेंड में. सो देयरफॉर यूजिंग दिस वैल्यू in second we get tan of y is equal to 1 into 2 minus e raised power x. so किसके इक्वल आ जाएगा, this is equal to 2 minus e raised power x which is the solution. so इसी टाइप से आपने और क्वेश्चंस इस पे प्रैक्टिस करनी है. so thank you.